Hello student, I am your associate teacher and today I will discuss the blueprint for the session 22 and 23 for the class 10th for the social science. There are 37 questions and there are 5 set of the questions and one set of the question for the map. So section A, section B, section C, section D, section E, section F. You know very well section A where the MCQ based questions and where the 1 marks question that will carry by the each questions and that will start from 1 to 20. In section B, that will the very short answer type of the question that will carry the 2 marks and that will start from 21 to 24. In section C, that is the small type of the answer type of the questions that will carry the 3 marks and that will start from 25 to 29. Then section D, that is the long answer type of the question that will carry the 5 marks and that will start from 30 to 33. And the section E, that will the case based study questions, so that will carry the each questions 4 marks and that will start from 34 to 36. And next section, that is the also last section also, that will the map based questions and that will carry the 5 marks. There are two set of the questions, A for the history that will carry the 2 marks and B for the geography that will carry the 3 marks each questions. 1 mark each question, so that is the 3 marks question. So that is very important things. And where you have to write the 1 line, there you have to write the 40 words, there you have to write the 80 words, there you have to write the more than 100 words, there you have to write the sections based you'll see case based study question. There the 4 type of the question, 3 type of the questions which you have to take out the answer from the case, means of sources has been given in the books we have to use. Then there are the 4 books of the social science: geography, history, civics and economics. And each books has given the lessons which I have written their numbers, and I will tell the name of the lesson also. So that will start from geography. So the first lesson is resource and development. Second lesson is forest and wildlife. Third lesson is water resources. Fourth lesson is agriculture. Then next lesson is minerals and energy resources. And next lesson is manufacturing industries. And last lesson is lifeline of the national economy. That is very important things on which questions on which lesson you have to pay the attention से much और कौन से क्वेश्चन कौन से लेसन में आपको ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए, कौन से लेसन में आपको ज़्यादा तैयारी नहीं करनी चाहिए, किसकी तैयारी करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आज डिस्कस आपसे करने वाला हूँ। तो लेसन नंबर 1 देख लेते हैं पहले। तो इसमें आपका केवल एक MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और इसमें आपको केवल एक MCQ के लिए ही तैयारी करनी है। आपको ना तो 2 मार्क, ना 3 मार्क, ना 5 मार्क, ना केस बेस्ड स्टडी, कुछ भी आपको नहीं करना है फिलहाल। तो फिर आपका देखिए सेकंड लेसन है, ठीक है ना, उसमें आपको एक MCQ की तैयारी करनी है और एक मैप की तैयारी करनी है। तो इस तरीके से आपके 2 मार्क्स आपको यहाँ पर लाने पड़ेंगे। इसमें आपको ज़्यादा तैयारी नहीं करनी है, केवल आपको 1 मार्क्स का ही तैयारी आपको करनी पड़ेगी। इसलिए आप में माइक्रो स्टडी के द्वारा ही अपना फोकस करें लेसन के ऊपर, ज़्यादा इसमें बेवजह का टेंशन ना लें। फिर जो थर्ड लेसन है आपका, उसमें आपका एक आएगा केस स्टडी क्वेश्चन जो कि 4 नंबर का होगा और इसमें आपको केवल केस स्टडी की ही तैयारी करनी है। कोई आपको MCQ नहीं तैयारी करना है, कोई आपको मैप तैयार नहीं करना है, कोई 2, कोई 3, कोई 5 मार्क्स की तैयारी आपको नहीं करनी है। फिर देखिएगा नेक्स्ट लेसन आपका ज्योग्राफी इसका एग्रीकल्चर है, जिसमें आपको एक MCQ की तैयारी करनी है और केवल ये 1 नंबर का आएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। इसमें आपका कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं लगेगी आपको। तो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ वही ये है कि आपको किस में तैयारी कितनी करनी है, किस में तैयारी कितनी नहीं करनी है। इसमें आपको लॉन्ग आंसर की तैयारी बिल्कुल नहीं करनी है, ना शॉर्ट आंसर की तैयारी करनी है, ना वेरी शॉर्ट आंसर की तैयारी आपको करनी है। फिर आपका देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, इसमें एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का आएगा, क्वेश्चन आपका मैप का आएगा। जिस तरीके से आपको 3 मार्क्स की तैयारी यहाँ पर करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसलिए आपको यहाँ पर कोई केस बेस्ड स्टडी की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, ना आपको MCQ की तैयारी करनी पड़ेगी। फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को देख लें यहाँ पे एक बार। इसमें एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आएगा आपका मैप से। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने की संभावना है इस लेसन में, इसको आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है ना स्टूडेंट। इसमें आपको लॉन्ग आंसर की तैयारी करनी है, यानी कि पूरा लेसन आपको हर तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपके इसमें 6 नंबर आ पाएंगे।
तो लास्ट लेसन है लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। इसमें आपको एक जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का तैयार करना पड़ेगा, ठीक ना, और ये केवल 3 नंबर का ही एक क्वेश्चन इस लेसन से आएगा, तो इसमें आपको कोई भी एमसीक्यू तैयार नहीं करना है। जैसे कि अभी तक कोरोना पीरियड में आपको बहुत सारी चीज़ें लेसन दिए गए थे और सभी में लगभग एमसीक्यू ही तैयार करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि इस लेसन में आपको एमसीक्यू तैयार करना है, किस लेसन में आपको लॉन्ग आंसर तैयार करना है। ये सारी स्ट्रेटेजी इस ब्लूप्रिंट के द्वारा आपको मिल जाएगी। फिर देखिएगा जो हिस्ट्री है उसमें आपके 5 लेसन हैं, और जो फर्स्ट लेसन है यू नो वेरी वेल राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सेकेंड लेसन आपका नेशनलिज्म इन इंडिया है। फिर जो थर्ड लेसन है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड है। फोर्थ लेसन आपका एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है। और थर्ड लेसन जो आपका लास्ट लेसन है वो प्रिंट एंड मॉडर्न वर्ल्ड है, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको। फर्स्ट लेसन में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और यानी कि आपको केवल यहाँ पर 5 मार्क्स की तैयारी करनी है, और इसमें आपको कोई भी एमसीक्यू वगैरह तैयार नहीं करना है। फिर सेकेंड लेसन देख लीजिए आप। सेकेंड लेसन में आपको 3 मार्क्स की तैयारी करनी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर, और एक 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर मैप से आएंगे, तो इसलिए आपको यहाँ पर 5 मार्क्स की तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ को थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा अपना पैटर्न फर्स्ट लेसन के बजाय, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 मार्क्स की तैयारी करनी है, यहाँ पर 5 मार्क्स की लेसन सॉरी आंसर की तैयारी आपको नहीं करनी। तो इस वजह से आप फोकस करेंगे 3 मार्क्स पे और मैप में। फिर देखिए जो थर्ड लेसन है मेकिंग ग्लोबल वर्ल्ड, इसमें आपको एक क्वेश्चन तो तैयार करना पड़ेगा एमसीक्यू से, एक क्वेश्चन आपको तैयार करना पड़ेगा 2 मार्क्स के लिए। इस तरीके से आपको 3 मार्क्स की तैयारी यहाँ पर करनी पड़ेगी, ठीक है ना स्टूडेंट। फिर देखिए अब आपका जो फोर्थ लेसन है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें आपको एक क्वेश्चन तैयार करना पड़ेगा एमसीक्यू से, सॉरी केस बेस्ड स्टडी से। इस तरीके से आपने देखा कि आपको यहाँ पर 4 मार्क्स ही लाने हैं इस लेसन में। फिर जो लास्ट लेसन है प्रिंट वाला, इसमें आपको 3 एमसीक्यू तैयार करने पड़ेंगे। केवल आपको एमसीक्यू की तैयारी इस लेसन में करनी पड़ेगी, यानी कि ये बड़ा फोकस करने वाला लेसन है कि कौन सी पहली बुक्स थी, है ना, जापानियों की, या सबसे पहली बार जो बुक्स थी, जो अकॉर्डियन बुक्स थी, वो कहाँ पर छपी थी, कहाँ पर बनी थी। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। या फिर जॉन गुटेनबर्ग से पहले किस तरीके से जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी वो आई, है ना। और जो आपका जॉन गुटेनबर्ग थे, उन्होंने कौन सी किस ईयर में अपनी प्रिंटिंग मशीन बनाई, कौन सी पहली बुक्स थी, ठीक है ना। मार्टिन लूथर कौन थे और इनकी पहली बुक्स जो थी वो किस तरीके से समाज में जो इंकरेजमेंट कर रही थी लोगों के लिए। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें जो आपको इस लेसन से तैयार करनी पड़ेगी। तो अब ये चीज़ देखने में सभी में कॉमन क्या है, 20 मार्क्स ही आ रहे हैं। फिर जो नेक्स्ट बुक्स है सिविक्स की, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जिसे बोलते हैं हम लोग। यहाँ पर जो 2 नंबर हैं आपको एमसीक्यू लिए तैयार करने पड़ेंगे, और 1 नंबर आपको चाहे इसके लिए केस स्टडी के लिए करना पड़ेगा। यानी कि सबसे ज़्यादा लेसन जो है फर्स्ट लेसन आपको ध्यान देना पड़ेगा। पावर शेयरिंग के में आपको यहाँ पर लेसन नाम बता देता हूँ मैं। पावर शेयरिंग है, फेडरलिज्म है, फिर आपका जेंडर, रिलीजन, कास्ट है, फिर आपका पॉलिटिकल पार्टीज है, फिर आपका आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपको तैयारी यहाँ पर करनी पड़ेगी। एक तो करनी पड़ेगी केस स्टडी के लिए, और 2 नंबर के क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के लिए तैयार करने पड़ेंगे। सेकंड लेसन आपका फेडरलिज्म है, जिसमें आपको एक क्वेश्चन तैयार करना पड़ेगा एमसीक्यू के लिए, फिर एक क्वेश्चन आपको तैयार करना पड़ेगा 2 मार्क्स के लिए। इस तरीके से आपको यहाँ पर 3 मार्क्स की तैयारी करनी पड़ेगी। फिर जो थर्ड लेसन है उसमें आपको एक क्वेश्चन तैयार करना पड़ेगा एमसीक्यू के लिए, फिर आपको एक जो क्वेश्चन है वो आपको तैयार करना पड़ेगा 2 मार्क्स के लिए, और इस तरीके से आपको 3 मार्क्स की तैयारी इस लेसन के लिए करनी पड़ेगी, ठीक है ना। फिर आपका जो फोर्थ लेसन है इसमें आपको जो तैयारी करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी 3 नंबर की। इस तरीके से आपको केवल 3 नंबर की तैयारी यहाँ पर करनी पड़ेगी। फिर जो नेक्स्ट लेसन है, लास्ट लेसन है, उसमें आपको 5 नंबर की तैयारी करनी पड़ेगी। इसमें आपको कोई भी एमसीक्यू, कोई भी 3 मार्क्स, कोई भी केस स्टडी नहीं है, इसलिए आपको इस लेसन में सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा लॉन्ग आंसर लिखने के लिए। लॉन्ग आंसर आपके बिल्कुल भी खराब ना होने पाए। फिर जो आपका जो लास्ट बुक है इकोनॉमिक्स की, उसमें आपको 4 लेसन दिए गए हैं। जैसे कि पहला लेसन है डेवलपमेंट, दूसरा लेसन है सेक्टर्स वाला, तीसरा लेसन मनी इंक्रेडिटेड एंड फोर्थ लेसन ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी करके दिया गया है। जिसमें आपको 2 क्वेश्चन जो तैयार करने पड़ेंगे एमसीक्यू से, केवल 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, ठीक है ना। फिर जो सेकंड लेसन है इसमें आपको 2 क्वेश्चन फिर से एमसीक्यू के लिए तैयार करने पड़ेंगे। एक लेसन आपको 2 नंबर के लिए तैयार करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर के लिए तैयार करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको 7 नंबर की यहाँ पर तैयारी करनी पड़ेगी।
यानी सबसे ज़्यादा फोकस आपको सेकंड लेसन में ही करना है इकोनॉमिक्स में, जो कि पूरे इस हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्किंग लाने वाला लेसन बन चुका है ये। फिर आपको थर्ड लेसन है मनी एंड क्रेडिट, जिसमें आपको 1 नंबर की तैयारी करनी पड़ेगी MCQ के लिए। फिर 1 नंबर की तैयारी आपको करनी पड़ेगी 5 नंबर के लिए, इस तरीके से यहाँ पर 6 नंबर। तो यानी कि जो थर्ड लेसन है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। फिर जो आपका नेक्स्ट लेसन है फोर्थ लेसन, इसमें आपको 2 क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे MCQ के लिए, 1 क्वेश्चन आपको तैयार करना पड़ेगा 3 मार्क्स के लिए। इस तरीके से आपको यहाँ पर 5 नंबर की तैयारी करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट आपने देखा कि आपको सबसे ज़्यादा जिस बुक्स में आपको ध्यान देना है और जो सबसे ज़्यादा आपको नंबर दिलवाने वाली है बुक्स है वो आपकी इकोनॉमिक्स है। तो ये आपको फर्स्ट नंबर ले लें, इसको आपको सबसे पहले तैयार करके रख लेना है और आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है। फिर आपको जो सेकंड बुक्स है जो सबसे ज़्यादा आपको इसमें इकोनॉमिक्स के बाद ध्यान देना है, जो आपको सबसे ज़्यादा नंबर देने वाली है इकोनॉमिक्स के बाद, वो है आपको सिविक्स, ठीक है ना। इसमें आप कोई भी इन दोनों बुक्स में आप कोई भी किंतु परंतु ना करें कि हमें किसकी तैयारी पहले करनी है किसकी तैयारी बाद में करनी है। आप हिस्ट्री को सबसे लास्ट में रखेंगे। फिर थर्ड लेसन जो थर्ड बुक्स है वो आपकी होगी ज्योग्राफी की, है ना। इसको आप इन दोनों को पढ़ने के बाद फिर आप इसमें ध्यान देंगे, और सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान देना है वो आपका फोर्थ बुक्स है, वो है हिस्ट्री की। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो ज्योग्राफी है जो हिस्ट्री है ना, इसमें आपको एक तरीके से देखा जाए कंपैरेटिवली हिस्ट्री में ज़्यादा जोर देना है, लेकिन अगर इन दोनों बुक्स के अलावा सबसे ज़्यादा जोर देना है तो आपको ज्योग्राफी फिर उसका हिस्ट्री में, ठीक है ना। हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। मैं इस बुक्स के हिसाब से बता रहा हूँ आपको कि ऐसा करने से अगर आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो होने वाला है आपका वो इकोनॉमिक्स का होने वाला है, सिविक्स का होने वाला है, फिर ज्योग्राफी का होने वाला है, फिर हिस्ट्री का होने वाला है। हिस्ट्री के लिए आपकी तैयारी किस प्रकार से होनी चाहिए मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि हमें सबसे ज़्यादा MCQ कहाँ पे तैयार करना है। तो यानी कि MCQ ओरिएंटेड जो बुक्स रहेगी वो आपकी रहेगी कौन सी, इसकी इकोनॉमिक्स की। इसमें क्योंकि आपके 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर सबसे ज़्यादा MCQ कहाँ पर आ रहे हैं देखें आप एक बार, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा MCQ जो आ रहे हैं वो देखा जाए सब कंपेरेटिवली सभी में एवरेज बराबर ही आ रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा MCQ आपके इकोनॉमिक्स में ही आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा MCQ आपको यहाँ पर तैयार करने हैं इकोनॉमिक्स में, यानी कि 7 क्वेश्चन आपके अगर आराम से बन जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं बनती है। फिर जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने वाली बात है कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो 2 मार्क्स के या कहाँ पर बन रहे हैं, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो बन रहे हैं वो सिविक्स में बन रहे हैं, यानी कि 4 नंबर के यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो फिर अब 3 नंबर का देख लेते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ बन रहे हैं, तो 3 नंबर के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में ही बन रहे हैं। फिर 5 नंबर के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ बन रहे हैं, तो आपने देख रहे होंगे कि सभी जगह पर एवरेज ही है लगभग, यार हर बुक से एक लेसन एक क्वेश्चन आ रहा है 5 मार्क्स का। फिर 4 मार्क्स के लिए जो स्टडी क्वेश्चन है वो कहाँ से आ रहे हैं, हिस्ट्री से आ रहे हैं, ज्योग्राफी से आ रहे हैं, सिविक्स से नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना, सॉरी इकोनॉमिक्स से नहीं आ रहे हैं, सिविक्स से आ रहे हैं। तो यानी कि आपको इकोनॉमिक्स में केस स्टडी में ध्यान नहीं देना है। तो यानी कि इसमें आपको क्या करना है, ओमिट करना है, इसे ओमिट करना है। ओमिटेड करेंगे इस चीज़ को तो आपको एक ये पता चलेगा कि आपको केस स्टडी इसमें याद नहीं करनी है, इसमें आपको फोकस करना है, इसमें आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। बात समझ आ गई होगी आप सभी को। फिर देखें आप कि जो हिस्ट्री में है उसमें आपको मैप कहाँ कहाँ आपको गौर करने हैं, तो मैप आपको गौर करने हैं। एक तो हिस्ट्री में, एक करना है ज्योग्राफी में। और जो हिस्ट्री कौन से लेसन में करना है मैप आपको सबसे ज़्यादा गौर, तो वो आपका लेसन है सेकेंड लेसन है नेशनलिज्म इन इंडिया। और सबसे ज़्यादा जो मैप आपको फोकस करने हैं वो 3 लेसन आपके दिए गए हैं। एक तो लेसन दिया गया सेकेंड लेसन, एक दिया गया आपका 5th लेसन, एक दिया गया आपका 6th लेसन। इस तरीके से आपको इन 3 लेसन में एक लेसन अगर आ भी सकता है तो फॉरेस्ट वाला भी आ सकता है ना, वाइल्ड लाइफ वाला भी आ सकता है, ठीक ना, और वाटर वाला लेसन भी आ सकता है मैथ्स के लिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नहीं बताए थे। तो इसको कहीं कम ज़्यादा आप कर सकते हैं जिससे कि आपका पूरा बैलेंस आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो जो स्ट्रेटेजी मैं बताने वाला हूँ हिस्ट्री की स्ट्रेटेजी कैसे रहेगी, तो हिस्ट्री के लिए आपको MCQ के लिए कुछ ज़्यादा जो यहाँ पर नहीं देना है, यहाँ अगर इकोनॉमिक्स के मुकाबला किया जाए, लेकिन आपको अगर इसमें सबसे ज़्यादा जोर देना है जिन लेसन में हिस्ट्री में, तो वो लेसन आपके रहेंगे लगभग
सारे रहने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा अगर मल्टीपल तरीके से ध्यान देना चाहिए तो मेरे हिसाब से आपका सेकंड लेसन है नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है ना। क्योंकि इसमें आपका एक क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आपका एक क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आपका एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। इसमें आपके 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें यानी कि आपको प्रिंट वाले लेसन में केवल आपको MCQ तैयार करने हैं, और फिर जो फेवरेट लेसन है इसमें आपको एक मैप भी तैयार करना है, इसमें आपको एक 3 नंबर का क्वेश्चन भी तैयार करना है। तो इस हिस्ट्री को पढ़ने का केवल एक ही तरीका है कि आप पहली बात तो थारोली बुक्स पढ़ लें अच्छी तरीके से, और जो क्वेश्चंस हैं, ठीक ना, वो भी आप अच्छी तरीके से देखते रहें। और क्वेश्चंस की जो कैपेसिटी है वो इस प्रकार की होनी चाहिए लिखने की कि आपके पास जो लिखने का तरीका है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस को जब भी अटेम्प्ट करें तो इसके लिए आपको 3 तरीके से आंसर को बांट देना है। पहली बात तो आपको प्रेजेंट करना है आंसर। प्रेजेंट कैसे करना है? सबसे पहले आप उसको एक तरीके से रेफरेंस देंगे। रेफरेंस यानी कि आप किस संबंध में आंसर लिखने वाले हैं वो आप बताने वाले हैं। फिर आप क्या करेंगे कि जो मूल जो एक मेन पार्ट है, जो मेन बॉडी आंसर की, वो आप यहाँ पर बताने वाले हैं, यानी कि कॉजेज है कि रिजल्ट हैं कि क्या है। तो ये आपको यहाँ पर जो मेन बॉडी है आंसर की वो यहाँ पर आपको बतानी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आंसर आपका कंक्लूड करना है, यानी जो आपने लिखा है वो आप यहाँ पर समराइज करके बताने वाले हैं। लेकिन आपका इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो हिस्ट्री का जो आंसर है वो एक तरीके से एक पैराग्राफ में नहीं आना चाहिए। कोशिश करें कि आप इसमें जो पॉइंट लिखें पॉइंट्स में लिखें, पॉइंट से 1 2 3 करके भी आ सकते हैं, ठीक ना। और मेन बॉडी जो फैक्टर है या जो भी कॉजेज दिए गए हैं उसमें भी आप इसके अंदर पॉइंट बना सकते हैं। ये तो है आपकी हिस्ट्री तैयारी। हिस्ट्री में फिर आपको एक चीज़ और ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि MCQ में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पिक्चर की भी तैयारी करनी पड़ेगी। जो पिक्चर्स दिए गई हैं लेसन में, खास तौर से जहाँ जहाँ पिक्चर दिए गए हैं, ठीक ना, तो पिक्चर आपको सबसे ज़्यादा कहाँ से आने वाले हैं आप देख लें एक बार। पिक्चर आपके जो आने वाले हैं वो प्रिंट से आने वाले हैं, और आपके जो थर्ड लेसन दिया गया मेकिंग ग्लोबल वर्ल्ड उससे आने वाले। लेकिन इससे तो फिलहाल कोई पिक्चर आने की संभावना नहीं बनती है। पिक्चर आने की संभावना बनती है तो प्रिंट से बनती है या फिर फर्स्ट लेसन से बनती है, ठीक ना। तो आपको इन दोनों लेसन पे ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें तो 1 नंबर नहीं दिया गया है। इस वजह से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप पिक्चर में सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे प्रिंट वाले लेसन से, और एक फर्स्ट लेसन से ध्यान देंगे आप, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये होगी आपकी हिस्ट्री की तैयारी। फिर आप ज्योग्राफी की तैयारी के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाने वाले हैं? तो ज्योग्राफी के लिए आप देख रहे होंगे लगभग सभी जगह पर रेशियो बराबर सा है, और आपको यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा तैयारी करनी है, तो आपको देख रहे होंगे कि जो सबसे ज़्यादा तैयारी करनी है आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में करनी है, ठीक ना। अब आप ज्योग्राफी कैसे पढ़ने वाले हैं? ज्योग्राफी को पढ़ने का एक ही तरीका है सबसे अच्छा, कि आप जो ज्योग्राफी है उसमें आप नोट्स जो हैं वो बिल्कुल माइक्रो बेस्ड नोट्स बनाएं। पहली बात तो है ना, ज़्यादा बड़े बड़े लंबे चौड़े नोट्स नहीं बनाएं, ठीक ना। और सबसे पहली बात है कि ट्रिक्स का जरूर ध्यान रखें, कि जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया भी हुआ है कि कई सारी जो चीज़ें हैं उसको आप याद रखने का तरीका क्या निकाल सकते हैं। तो उसके लिए ट्रिक्स एंड टिप्स दी गई हैं, जो कि मेरे बहुत सारे वीडियो में आपको दिखाई भी गई हैं, दी भी गई हैं इससे पहले। तो आप ज़रूर यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब करके आप उन सारे वीडियो को देख सकते हैं जहाँ पर ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स दी गई हैं। सिविक्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि सिविक्स में आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो सिविक्स में तैयारी करने का एक ही सबसे अच्छा तरीका है कि पहली बात तो यहाँ पर MCQ की तैयारी किन किन लेसन में करनी है आपने वो क्लियर कर लिया। फिर आपको 1 लेसन के लिए 1 मार्क्स के लिए जिन लेसन को नहीं पढ़ना आप उनको पूरी तरीके से अवॉइड कर दीजिए, ठीक है ना। इसमें आपको ओवरऑल ध्यान क्या देना है कि आपको लिखना तरीका कैसे आता है, लिखने का क्या तरीका है। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं बनाने हैं। इसमें आपको कम से कम एक जो आंसर लिखेंगे उसमें आप कम से कम एक पैराग्राफ में आंसर नहीं कंप्लीट करेंगे, बल्कि 2 या 3 पैराग्राफ में आंसर अपना कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इकोनॉमिक्स जो है उसमें आपकी स्ट्रेटेजी ये रहनी चाहिए कि इसमें पॉइंट बराबर आने चाहिए, इसमें बराबर एग्जाम्पल आने चाहिए। एग्जाम्पल का ध्यान आप सबसे ज़्यादा कहाँ पर रखेंगे? तो मैं अब आपको बताऊँगा सबसे ज़्यादा ध्यान आपका एग्जाम्पल में यहाँ पर आने वाला है, ज्योग्राफी में, फिर सिविक्स में, फिर हिस्ट्री में। अब आप जो भी आंसर लिखेंगे, जो आप देखते हैं कि बच्चे जो है आंसर यहाँ पर लिखते हैं, बल्कि मेरी एडवाइस आपके लिए ये रहेगी मार्जिन लाइन के ऊपर ही आप आंसर नंबर इस प्रकार से लिखें। या दूसरी बात मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप किस प्रकार से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं आंसर शीट लिखने की। तो मेरा और ये रहेगा एडवाइस कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करें और क्वेश्चन नंबर 37 में ही अपना स्टॉप कर दें, ठीक है ना।
जिससे आपको फ़ायदा क्या मिलेगा कि आप ये साइकोलॉजिकली उस एग्ज़ामिनर के पास से अच्छे से नंबर ले सकते हो, क्योंकि वो जो है आपकी तैयारी में कंफर्ट जोन में जाना चाहेगा, ना कि कोई स्ट्रेस लेना चाहेगा। तो निश्चित तौर पर आप उसको एक तरीके से एक मौका दो कि वो आपको नंबर जो है देने वाला है, जो बड़ा एफर्टलेसली दे, आपको एक तरीके से ओपन हार्ट दे एक तरीके से, जिससे कि उसको कोई दिक्कत नहीं हो। आप उसके लिए कुल मिला के पेपर तैयार करने वाले हैं, उसके लिए कुछ जैसे उसने आपके लिए क्वेश्चन तैयार किया है, क्वेश्चन पेपर तैयार किया है, वैसे ही आप अपनी आंसर शीट आप उसके लिए तैयार करें, जिससे कि आपको एफर्टलेसली ना केवल आपकी शीट देख पाए बल्कि खुश भी हो पाए, और बल्कि आपके खुश होने के बाद आपके नंबर भी बहुत अच्छी तरह भर भर के दे दे। तो मेरी कुछ एडवाइस ये हैं, और फिलहाल अब आने वाली वीडियो हैं उनमें मैं आपको एक एक लेसन के ऊपर किस तरीके से तैयारी करनी है ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। फिर इसी पैटर्न में मैं आपको हर लेसन की तैयारी करवाने वाला हूँ कि किस लेसन में कौन कौन से क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं है, ये ना आपको तैयार करने हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे आने वाले वीडियो में रहेंगी। थैंक यू स्टूडेंट टू लिसन मी एंड वॉचिंग।